میرے بچے، آپ کے بچے، میرے نوجوان، آپ کے نوجوان، آپ ان کو یہ ترجمے پڑھنے دیں، وہ تھوڑی دیر بعد آ کے آپ سے سوال کریں گے واٹ از دس ڈیڈ، ہوتا ہے اکثر. واٹ از دس. پھر وہ غلط ہو رہا ہے. پھر اگر میں محسوس کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی سونامی آنے والی ہے لوگوں کو، جس میں کہ لوگ اسلام کو چھوڑ دیں، اور یہ ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کچھ چینلز کھل گئے ہیں، جیسے آپ نے کہا ایکس مسلم. پہلے کبھی ہم سنتے تھے کہ ایکس مسلم ہمیں کوئی شاذ و نادر، اب تو چینلز کے چینلز ہیں ایکس مسلمز کے. آپ سمجھتے ہیں اس کی وجہ جو ہے یہ جو غلط ترجمے ہوئے ہیں قرآن، اسی وجہ سے وہ ہو رہے ہیں، مس گائیڈ ہو رہے ہیں لوگ؟ اس کی پہلی وجہ قرآن کے وہ غلط ہے، پہلی وجہ. اس کے بعد اور بہت سے فیکٹرز ہیں، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ وہ جب اس کو پڑھتا ہے، یہ اللہ کی بات ہے، وہ کہتا ہے نو 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 آئی ڈونٹ لائک دس اللہ، آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ. امریکہ میں بلال فلپس کا نام سنا ہوا ہے آپ نے؟ نہیں، میں نے نام سنا، میں نے سنا. اس نے اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ بہت سے نوجوان بچے اور بچیاں امریکہ میں اسلام چھوڑ رہے ہیں. وائی؟ آپ نے، میں نے ان کو روکنے کے لیے کوئی تدبیر کی ہے؟ ان سے بات کی ہے؟ بس یہی ہماری کوشش ہے کہ ان کو صحیح راہ پہ بتا سکیں کہ قرآن میں ایسا نہیں ہے، جو وہ سن رہے ہیں وہ غلط ہے، یہ صحیح ترجمانی نہیں ہے. صحیح ترجمانی نہیں. جو مین سٹریم ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے، انہوں نے بیٹھ کے کوئی پلاننگ کی ہے کہ اس بات کو روکا جائے؟ محسوس سب کر رہے ہیں، سب محسوس کر. پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے ملے مجھ سے آ کر جنہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہم اسلام چھوڑ چکے ہیں، لیکن ہم اپنے ماں باپ کو نہیں بتا سکتے. سر ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اتنے سارے ملے مجھے سرفراز، واللہ میں آپ سے کہتا ہوں اتنے ملے جنہوں نے کہا ہم اسلام چھوڑ چکے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے، یہ سیریس معاملہ ہے، یہ تو بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے. تو یہ جو آپ جب ان کو بتاتے ہیں، جو سو کالڈ اسکالرز ہیں، وہ لیکچرز دیتے ہیں، ٹریڈیشنلز ہیں زیادہ تر، لیکن جب ان سے کوئی کوشچن کرتے ہیں آپ، کوئی بھی یعنی بچہ بچی ہے، ینگ جنریشن جو ہے، تو وہ ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے قرآن میں جو ان کے جو کانسیپٹس ہیں وہ بالکل ترجمے پہ چل رہے ہیں، غلط ترجمے ہیں، اسی سے پھر وہ لوگوں کو لیکچر دے رہے ہیں مزید لوگوں کو، اور وہ جب ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ جواب نہیں دے سکتے. اس لیے کبھی قرآن سے کوئی سوال کرتا ہے تو وہ جواب نہیں دے پاتے. سرفراز ان کے پاس جواب ہوتا ہی نہیں ہے، نہیں ہوتا ہی نہیں ہے جواب. تو پھر وہ آپ کو کہتے ہیں آپ پہ شیطان آیا ہوا ہے، آپ کو وسوسے آ رہے ہیں، آپ توبہ کیجئے، آپ فلانی آیت پڑھیے، آپ اتنے نفل پڑھیے. وہ جو لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں، وہ ان لوگوں کی چیزیں سن کے، غلط ترجمے پڑھ کے، وہ تو قرآن تو بیسکلی انہوں نے ٹچ ہی نہیں کیا، انہوں نے پڑھا ہی نہیں قرآن، نہ ان کو عربی کے تھوڑا سا کچھ پتہ ہے، نہ کچھ، وہ قرآن تو دیکھا ہی نہیں انہوں نے. جو مزید جو لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں اور اس پہ مزید ڈسکشن ہو ہی جا رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے. یہ جو میں نے شروع میں سنائی باتوں میں سنائی بات، یہ جو شروع میں نے آپ سے کہا نا کہ میں ترجمہ پڑھ کے کنفیوز ہو گیا، جی میرے ساتھ یہی ہوا تھا، میرے ساتھ یہی ہوا تھا. یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے؟ میں سائنٹسٹ ہوں، ڈاکٹر ہوں، ایویڈنس بیسڈ میڈیسن میں پریکٹس کرتا ہوں. میرے پاس جو چیز میں آپ کو دوں گا اس کا ایویڈنس ہے. میں آپ کو ایک ٹیبلٹ دوں گا، اس پہ آپ کو میں ریسرچ دکھاؤں گا کہ دیکھیے یہ ٹیبلٹ یہ کام کرتی ہے. میں ایویڈنس بیسڈ میڈیسن پریکٹس کرنے والا، میں آپ کی بات جس میں کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے میں کیسے قبول کروں؟ کیسے مانی جا سکتی؟ میرے پیشے کے خلاف تھی، میرے نیچر کے خلاف تھی وہ. جی میں کنفیوز ہو گیا.
اور جیسے آپ نے اگزامپل دی، آپ عمرے پہ گئے تھے تو وہ پڑھ رہے تھے اور سب رو رہے تھے، آپ نہیں روئے اس لیے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ بات کیا ہو رہی ہے. وہ بات ہی کیا بول رہے ہیں. ہم نہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہم اجتماعی طور پہ یا انفرادی طور پر کوشش ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہم اس لینگویج کو بیٹھ کے سیکھیں. کچھ تھوڑی بہت فہم تو ہو یار، اس لفظ کے کیا معنی ہیں، اس لفظ کے کیا معنی ہیں. ہاں تھوڑا سا جیسے سوچیں کہ کیا یہ صحیح بھی ہے یا نہیں. اگر کوئی بات پہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ ایسی بات لگ رہا ہے کہ اللہ کی نہیں ہو سکتی، تو اس پہ ریسرچ کریں، تھوڑا سا غور کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا کیا طریقہ کار ہے؟ کس طرح آپ ترجمہ جو کر رہے ہیں کس طرح کرتے ہیں؟ آپ کا کیا طریقہ ہے؟ ویری گڈ. پھر میں اس کو مختصر کر کے بتاؤں گا. قرآن کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے یا اس کے ترجمہ یا اس کی ترجمانی کرنے کے لیے، میں کہوں گا ترجمہ تو نہیں، ترجمانی. یہ میرا ورڈ آپ یاد رکھیے گا. ہاں ترجمانی، ویری گڈ. میں ترجمانی کرتا ہوں قرآن کی، میں ترجمہ نہیں کرتا ہوں. یہ بات بہت صحیح ہے. اس کو ترجمانی کرنے کے لیے ہمیں 3 ٹولز چاہیے. نمبر 1، ظاہر ہے سب سے پہلے تو آپ کو عربی زبان آنی چاہیے. جب زبان آئے گی تو آپ اس لفظ کا روٹ ورڈ نکال کر لغت میں جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، جس کو ڈکشنری کہتے ہیں. نمبر 2، چونکہ آپ کو ہلکی پھلکی زبان آتی ہے یا آپ مکمل نہیں بولتے ہیں، لیکن آپ کسی کو بولتا ہوا سنتے ہیں تو آپ اگر وہ آہستہ آہستہ بولے تو آپ سمجھ جاتے ہیں، یا کہیں لکھا ہوا ہو تو آپ اس کو انٹرپریٹ کر لیتے ہیں. تو آپ کو زبان عرب میں جانا پڑے گا، یا ان کی بولی میں جانا پڑے گا، یا ان کے لٹریچر کو دیکھنا پڑے گا. اخبار ہے ان کا، کتابیں ہیں. اور سب سے اہم بات، سب سے اہم، ان دونوں کے اوپر رکھ دیجیے گا اس کو، خود قرآن میں ڈھونڈنا پڑے گا. We welcome you to the Huawei P60 series and flagship product launch for the Middle East and Africa region. I'm so glad today to come to Dubai to share the innovative design of P60 Pro. This is a Rococo Pearl. Every piece is unique. So the P60 Pro features our most advanced X-Image camera ever to find its way into a smartphone. The industry's largest aperture at f1.4. It is amazing really. With a small device in our pockets, we can get really professional outputs. Huawei P60 Pro is #1 smartphone camera. Ladies and gentlemen, the Huawei Mate X3. And this is the world's slimmest and lightest large-screen foldable phone. I'm going to introduce you to a new Huawei Watch Ultimate. The most powerful watch we've ever built. The first smartwatch to be built with liquid metal material. We will move forward a brighter future together. قرآن کی اپنی ایک لیکسیکون ہے، اپنی. قرآن کا الفاظ بتائے گا، میرا یہ ٹرانسلیشن یہاں کر. کتنی عجیب سی بات ہے کہ لفظ بولے گا آپ کو چیخ کے کہ میرا یہ ترجمہ کر دو. بہت امپورٹنٹ. میں آپ کو قرآن کو قرآن سے ہی سمجھنا چاہیے. ایگزیکٹلی. آپ کو اس لفظ کو قرآن کی دیگر آیتوں میں، اللہ کے دوسرے الفاظوں میں، جملوں میں، اللہ کے دوسرے جملوں میں اسے دیکھنا ہوگا، اس لفظ کو کہاں کب استعمال کیا. بالکل صحیح بات. مثال دیتا ہوں، متقی کیا ہے، صلاۃ کیا ہے، صوم کیا ہے، سبحہ، سجدہ، رکعہ، یہ کیا ہے؟ یہ الفاظ بے شمار دفعہ آئیں گے. ہم نے ان کے لفظی ترجمے کر دیے. ٹھیک ہے، ان کا ایک لفظی ترجمہ ہے، لیکن آپ قرآن کی آیتوں میں تو ذرا جا کے دیکھیں.
कुरान वो कैसे, हाँ, क्या किन मायनों में इस्तेमाल होना चाहिए, सही एग्जैक्टली किन मानों में ये इस्तेमाल हुआ है, पूरे वहां से- कॉन्टेक्स्ट देखना है, वहां से पूरे आप कॉन्टेक्स्ट। यस, वेरी गुड, कॉन्टेक्स्ट। आप उसको सियाको सबाक में देखेंगे। अच्छा, आम जबान में काफिर, मोमिन, फहश, नजस, मारूफ, मुनकर, ये क्या लफ्ज है? आप कुरान में तलाश करें, या आपको बताएगा मुनकर क्या है, मारूफ क्या है, खुद बताएगा, वो जुमला बताएगा। जबरदस्त। ये इंपॉर्टेंट है। कुरान को, एक लफ्ज को जब आप ट्रांसलेट करने या तर्जुमानी करने जाएंगे, इस लफ्ज को पूरे कुरान में खोल देंगे। अब तो कितना आसान हो गया, इंटरनेट की दुनिया ने बहुत। कितना कर दिया। बहुत आसान है। और आपके तशरीफ आयत भी इसी को कहते हैं, तशरीफ आयत जो कहते हैं वो क्या है? जब आप इसका मानी मुतय्यन कर लेंगे और इससे एक जुमला बना लेंगे, तो इस जुमले से मिलता जुलता जुमला या इसकी तायीद में एक जुमला या इसके इजाफे में एक जुमला वो आपको मिलेगा। अच्छा, वो मिलेगा कहीं ना कहीं। सरफा जो है ना, तसरीफ, सरफा का मतलब एक्चुअली होता है लेआउट कर देना। अच्छा, आपने शायद क्राइम शोज देखे होंगे। जी जी, क्राइम शो में डिटेक्टिव जो है सबसे बीच में तस्वीर लगाता है वो विक्टिम की, और फिर उसके बाद एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर या व्हाइट बोर्ड पर मजीद तस्वीरें, मजीद ये, मजीद वो, फिर डोरियां लगाता है। यूं वो क्या कर रहा है? ही इज लेइंग इट आउट। पूरे क्राइम एक बोर्ड पर लेआउट कर दिया, सही, और वो डॉट्स कनेक्ट कर रहा है। डॉट्स कनेक्ट कर रहा है वो। हाँ, इसका मतलब है सरफा। अच्छा, हालांकि उसे पता होता है सब चीज का, लेकिन जब वो कनेक्ट करता है तो तसरीफ का मतलब है कि आप कनेक्ट करें इसको, वहां जाके कनेक्ट करें, बात समझ में आ जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि यहां बात नामुकम्मल थी और अगली जगह मुकम्मल होगी। नो 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 नो, अल्लाह का हर जुमला अपनी जगह पर पूरा मुकम्मल है। अच्छा, पूरा मुकम्मल है। सही। सिर्फ बात यह है कि आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे, ब्रॉडर व्यू से सामने आ जाता है। एग्जैक्टली। ये बिल्कुल गलत है। तसरीफ आयत का मतलब ये कि जी ये आयत का यहां मतलब समझ में नहीं आया, देखिए अगली आयत में आ जाएगा। रॉन्ग, अच्छा, ये गलत है। गलत है। अल्लाह अपनी बात समझा ना सके। अच्छा, दूसरा आपने बड़ी एक अच्छी बात की थी मुझसे, आप बात कर रहे हैं जैसे इंग्लिश की वोकैबुलरी है और अरबी को आप देखते हैं, जैसे अरबी के कुछ वर्ड्स हैं, जैसे आप एग्जांपल दे रहे थे शायद उसके, वो जो आप बता रहे थे कि अरबी में जो बच्चों की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। मैं बताता हूं, जी जी, अगर आप गौर से देखेंगे तो जिस जमाने में कुरान नाजिल हो रहा था, उस जमाने के लोग जो बोलचाल जिस तरह से कर रहे थे, उस बोलचाल में उनके पास अल्फाजों की वोकैबुलरी कम थी। अब डिक्शनरीज में आपके पास नए अल्फाज बन गए, बल्कि हर साल डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड में हर साल 10 नए अल्फाज इंग्लिश के जोड़े जाते हैं, सही, बनाए जाते हैं, बनते हैं। इसी तरह अरबी के साथ भी हुआ, नए अल्फाज बनाए गए। उस जमाने में हातिफ, हातिफ टेलीफोन को कहते हैं, ये लफ्ज था नहीं होगा, नहीं था, आज है डिक्शनरी में, आज है। और भी सारे अप्लायंसेस के नाम, हाँ, अरबी में आ गए। वो सब अब आए। मैंने आपसे जो बात की थी उस दिन कि देखिए हमारी जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूं। जब बच्चा मां के पेट में है तो फीटस है, जैसे ही पैदा हुआ, अभी 1 घंटे का है वो बच्चा, तो नियोनेट है, फिर 2 दिन का हो गया तो इन्फेंट है, फिर जब वो पैदल चलने लग गया पैरों पे, 1 साल का हो गया तो वो टॉडलर है। ठीक है, सही, फिर वो टीनेजर है, और ये स्टेजेस चल रहे हैं। हर स्टेज के बच्चे के एक अलग
टर्मिनोलॉजी या वर्ड है। अरबी में बच्चा पैदा हुआ जब तक बालिग नहीं हुआ तिफल है, तो वहीं का बच्चा ही यूज हुआ है जब तक वो 18 नहीं हो जाता। अब इन्होंने जब बनाए होंगे डेफिनेटली, अब अरबी ग्रामर व या डिक्शनरी में इन लफ्जों को लाया होगा, लेकिन उस वक्त उनके पास लफ्ज था तिफल। वेरी गुड पॉइंट। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, ये मैं आज एक और मिसाल देता हूँ आपको, थोड़ी सी बात जरा सा सख्त हो जाएगी अभी, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम जो बात कर रहे हैं हमें हक को कहीं नहीं छुपाना है, कतमान हक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारा तो चैनल का नाम ही यही है, कतमान हक बिल्कुल गलत है। कतमान छुपाना नहीं करना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं छुपाना। मैं बड़ी आम सी एक मिसाल देता हूँ। हमारे माशरे में कहा जाता है सलात, ये लफ्ज ले लें, सलात कायम करें, कुरान का लफ्ज है अकीमुस सलात, ये कुरान का नज़्बुल ऐन है। नज़्बुल ऐन अगर कोई कुरान का मुझसे पूछे ना तो ये लफ्ज अकीमुस सलात है। नज़्बुल ऐन का दूसरा कोई वर्ड सिनोनिम? क्या मैं इसको कहूं कि इट इज द बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक फाउंडेशन जी जी, फाउंडेशन है कुरान की अकीमुस सलात। अगर इस इस्तिलाह के जो मानी है हमारे यहाँ आजकल राइज है, आप देखें क्या सलात कायम है? देखिए, मैं बिल्कुल आप मेरे नाजरीन से भी मैं दरख्वास्त करूंगा, मुझे गलत नहीं समझें, मैं कहीं पर भी ये नहीं कह रहा हूं कि नमाज पढ़ना गलत है, नो, कहीं भी नहीं कह रहा हूं। मेरे मुंह अपने अल्फाज मेरे मुंह में ना डालें या अपने ख्यालात से मुझे ना परखें। दिस इज इंपॉर्टेंट। मैंने कभी नहीं कहा कि नमाज नहीं पढ़ो या नमाज पढ़ना गलत है, नो, ठीक है, बिल्कुल। मैं नमाज पढ़ने वालों को नमाज पढ़ने से रोकता नहीं हूं, और अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो मैं उससे जबरदस्ती पढ़वाता नहीं हूं। ये तो मेरा अपना अमल है, मैंने जिस बात को जिस तरह समझा, मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं अपनी राय दूसरे पर मुसल्लत करूं। सही बात। नो, नॉट करना भी नहीं चाहिए किसी को। नहीं, मैं अपने दायरे में रहते हुए, अपनी राय पे कायम रहते हुए दूसरे की राय का उतना ही एहतराम करूं। बिल्कुल। जब ये माशरे में हमारी रविश हो जाएगी ना, तो बताइए फिर मेरी और आपकी दुश्मनी क्यों होगी? सही बात। होगी नहीं। नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मेरे ख्याल में हमें इस चीज का सोचना चाहिए। आपने सवाल ये किया कि सलात जो है वो कायम है या नहीं, ये सवाल था। तो इस पे हम लोगों को सोचना चाहिए, इस चीज पे कुरान पे जाके देखना चाहिए कि जो अल्लाह ताला ने सलात जो वर्ड यूज हुआ है और जो उसकी जिक्र किया है कुरान शरीफ में, क्या वाकई में इस वक्त ये कायम है या नहीं, इसको हमें देखना है। सरफराज, इसका एक प्रैग्मेटिक टेस्ट है कुरान में 29 की 45 में अल्लाह फरमाते हैं इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर। अगर मैं इसको तर्जुमा करूं तो ये होगा कि सलात आपकी पस्ती किरदार को और नापसंदीदा अफआल को, पस्ती किरदार और नापसंदीदा अफआल को रोक देती है। ليز فليمن هوت من دجاج كنتاكي حارنا ما جربت هالشي من قبل. माशरे में अगर ये दो चीजें आपको नजर आ रही हैं, सलात कायम, सलात कायम हो गई। और जहाँ ये चीजें नजर नहीं आ रही, इसका मतलब वहाँ कायम नहीं हुई। इससे तो ये इसका मतलब है कि हमें कुछ और भी करना है। जो हम कर रहे हैं ना, जी जी, वो काफी नहीं है, वो काफी नहीं है। राइट, वेरी गुड। ये जो आपने दो वर्ड बताए, इसको दोबारा बता देंगे आप प्लीज? ये आपने क्या कहा है उसका? पस्ती हाल, पस्ती किरदार। पस्ती किरदार क्या है? आपका कैरेक्टर बहुत लूज है। और मुनकर जो है वो मारूफ की ऑपोजिट है।
नापसंदीदा अफआल, नापसंदीदा काम। ठीक है, तो ये अच्छा। तो हो ही नहीं सकते जहाँ सलात होगी। ये प्रैग्मेटिक टेस्ट है, बिल्कुल ऐसा प्रैग्मेटिक टेस्ट है, हकीकत पर मबनी है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि सलात इन दो बातों को रोक देगी। वो माशरे में प्रिवेल ही नहीं करेंगे जहां सलात कायम हो गई है। वेरी गुड पॉइंट। सही। एक और देखें, 19 की 59 में अल्लाह ने फरमाया, जी जी, अज़ाउस सलात व तबाउ शहवात, इन्होंने सलात को निगलेक्ट कर दिया और दे फॉलोड देयर लस्ट, वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चले गए। अच्छा, सलात का ऑपोजिट ख्वाहिशात है। ये भी एक पॉइंट। वेरी गुड पॉइंट। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आयत। सलात का ऑपोजिट ख्वाहिशात है। सलात छोड़ दिया, ख्वाहिशात ले लिया। सरफराज, अगर मैं अपनी ख्वाहिशात को छोड़ चुका हूं, जो मेरा लस्ट है, तो मैंने सलात कायम कर दी है। बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड पॉइंट। मैंने कायम कर दी है। अब जरूरी है मैं 5 वक्त नमाज भी पढ़ रहा हूं, लेकिन मैंने अपनी शहवात पर, अपनी लस्ट पर कंट्रोल कर लिया है। मैंने सलात कायम कर दी है। इसी तरह जज किया जा सकता है अपने आप को। हाँ। अच्छा, अब एक और आयत आती है जिसमें अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि इनकी सलात कैसी थी। 8 की 35 में, वकाना सलातहुम इंदल बैत मकान व तस्दीयतन। हाँ, ये बड़ी मशहूर आयत है, इस पे काफी लोग क्वेश्चन। जी जी, इस आयत को सामने रखें। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या मक्का में नमाज पढ़ी जा रही थी? मैं पूछता हूं आपसे सवाल, मुझे बताइए। वेरी गुड क्वेश्चन। सरफराज बताएंगे? No, I could not tell. I mean, I was not there, so I really could not tell. डेफिनेटली मैं नहीं बता सकता। अच्छा, फिर इसमें ये जो कहा गया है कि सीटियां और तालियां, अब मैं इशारा करके बताता हूं सीटी कैसे बजाते हैं। देखेंगे, मैं जबान के नीचे 2 उंगली रखूंगा ना, अभी हवा मारूंगा ना, सीटी निकलेगी मेरे मुंह से। ठीक है। और ये है तालियां। क्या वो सीटियां बजा रहे थे, तालियां बजा रहे थे? हाँ, ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, कुछ और ही मामला लगता है। आप बताइए डॉक्टर साहब। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कितना एलेगोरिकल जुमलाई अंदाज बयान है। ये तर्जुमों की गलती है। फिर मैं वही कह रहा हूं ना कि आपको तर्जुमानी करनी है। तर्जुमानी। हाँ। तो आप जब इस अरबी में ये जो है, इसमें कहीं सीटियों और तालियों का जिक्र है अरबी में, जब आप देखते हैं इसको, इस वर्ड्स? मैं बताता हूं आपको, ये जान के हैरत होगी कि लफ्ज मकाओ जिसको तर्जुमा करते हैं, ये सीटियां, ये कुरान में सिर्फ एक ही दफा आया है और सिर्फ इस आयत में आया है। इस आयत में, सिर्फ इस आयत में। इवन ये जो लफ्ज है तस्दीयतन, ये भी एक ही दफा आया है। मैंने एक और आयत में देखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां पर वो तस्दीयतन है। ठीक है, दोनों लफ्ज सिर्फ एक ही दफा आए। कितनी ताज्जुब की बात है। कुरान के बेशुमार ऐसे लफ्ज मैं आपको बता सकता हूं जो कुरान में सिर्फ एक ही बार आए। तो फिर ये कहां से लिया गया है? ये जैसे ये मैं इस पर अपनी राय देता हूं, फिर मैं ये कहूंगा कि मेरी राय गलत भी हो सकती है। आप अगर मुझसे बेहतर सोच रहे हैं, आप बताइए। बिल्कुल। अरबी की जबान में आप चले जाएं, आज की बोली में, तो सीटी बजाने को सफीरुन कहते हैं। स्वात फे ये रे, मकाउन है ही नहीं इनकी जबान में, कोई नहीं बोलता। और क्लैपिंग, तालियां बजाने को तस्फीक कहते हैं। तस्फीक, तस्दीयतन नहीं कहते।
तो मुझे इन दोनों अल्फाजों को देखना होगा. जब बोले आप नहीं, ओवरऑल देखें इस आयत को, ऐसा लगता है कि ये मतलब मजाक उड़ाते थे या इस तरह का कुछ हो सकता है. मैं आता हूं उस पर. मकाम को अगर आप देखेंगे तो इसका सिनोनिम, मिलता जुलता वर्ड इसका अखरजा है. अच्छा, सिनोनिम्स पे जाना होगा आपको कि ये लफ्ज का सिनोनिम क्या है अरबी में. इसका सिनोनिम अखरजा. अखरजा को अरबी में कहते हैं डिफ्यूज कर देना, एक्सक्लूड कर देना, इखराज. भाई गैस डिफ्यूज हो गई ना, गैस का इखराज हो गया. डिफ्यूज करना, मुंतशिर कर देना, या निगलेक्ट कर देना, एक्सक्लूड कर देना. एक्सक्लूड से. और तस्दीक का मतलब होता है किसी चीज को खातिर में नहीं लाना, इनकंसिडरेट. हाँ वही निगलेक्ट कर देना, राइट. अनमाइंडफुल हो जाना उसके बारे में, हीडलेस हो जाना. ये आपने तस्दीक का बताया. हाँ, किसी चीज को कंसिडर ही नहीं करना, राइट. गैर यकीनी मानना, कोई इम्पोर्टेंस नहीं देना. अब मैं अगर बाकी लफ्जों का तर्जुमा ना करूं, सलात का नहीं करूं और बैत का ना करूं, जो कि अभी हम छोड़ देते हैं कि बैत का तर्जुमा क्या है और सलात का क्या है, तो वो कोई चीज है जिसे गैर यकीनी जानकर मुंतशिर कर रहे हैं. They are neglecting it and spreading it out. Right. छोड़ो. Right. अच्छा, ये जो मैं कह रहा हूं ना, डिफ्यूज कर देना. मैंने आपकी बात को डिफ्यूज कर दिया. मैंने आपसे क्या कहा, छोड़ो यार, आपकी बात बेकार है. हाँ, बेकार, कोई माने नहीं रखती, इंपॉर्टेंट नहीं है. अब मैं सलात को नहीं ट्रांसलेट कर रहा हूं, बैत को भी नहीं ट्रांसलेट कर रहा हूं. ये कुछ कर रहे हैं जहां किसी बात को ये जोर नहीं दे रहे, उस पर यकीन नहीं कर रहे और उसको कह रहे हैं बेकार. ना ये सीटियां हैं ना ये तालियां हैं. हाँ, इससे जो है वो कहना चाहिए, वो एसेंस आ जाता है ज़हन में कि इस आयत में कुछ ऐसी चीज है जिसको कोई ऐसी चीज है जिसको ये डिफ्यूज कर रहे हैं. अच्छा, अभी आपने जो सवाल पूछा ना कि एक अल्फाज के इतने सारे मानी, तो मैं आप ही के किसी उस पर सुन रहा था, किसी साहब ने बड़ा खूबसूरत लेक्चर दिया था रिबा पर, और उन्होंने कहा कि रिबा के 3 मानी हैं. बिल्कुल सही, रिबा के 3 मानी हैं. रिबा के मानी है किसी चीज का फूल जाना, रिबा के मानी है किसी चीज का ऊंचा होना, रिबा के मानी है एस्थमा, वो जो मैं इनहेलर लेता हूं जिसके लिए, दमे की बीमारी है. 3 मानी है. मुझे कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा कौन सा मानी लगाना है. सही. एक और मिसाल देता हूं. तो आयत, लफ्ज आयत. अब देखिए लफ्ज आयत कितनी दफा कुरान में आया है. कुरान की सतर को आयत कहा, अल्लाह ने कायनात को आयत कहा. कायनात में होने वाले जो प्रोसेसेस हैं, बारिश बरसी, सूरज निकला, सूरज पहले आया, बाद में पीछे चांद आया, सबको आयत कहा है. कुछ और काम सरजद हुए कुछ नबियों से, उनको भी आयत कहा है. क्या मैं सबके एक ही मानी कर दूं कुरान में करते वक्त? नहीं हो सकता. मैं इसको इंग्लिश में कहूंगा, कहीं इसको साइन का है, कहीं इसको फिनोमिना का है, कहीं इसको क्लूज का है, कहीं इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स का है. मुझे प्रॉपर वर्ड लाना पड़ेगा. सही. भाई बारिश बरसी, पानी आया जमीन से, अब नबातात उगले, ये तुम्हारे लिए इसमें आयत है. मुझे आयत को वहां पर देखना पड़ेगा, मैं इसके लिए सुटेबल वर्ड कौन सा लाऊं. कौन सा? बारिश आई, नबातात उगे, अल्लाह ने कहा ये तुम्हारे लिए आयत है. अरे भाई ये प्रोसेस है. बारिश आएगी तो पानी के बाद जो है नबातात उगेंगे, घास उगेंगे. हम तो सिर्फ साइन ही लेते हैं इसको, जैसे साइन, लेकिन ये प्रोसेस है. प्रोसेस भी अच्छा है. नजर आया तुम्हें? फिनोमिना. ये फिनोमिना है. वाकई में इतनी सारी चीजें हैं डॉक्टर साहब के, मतलब आप देखें कुरान को पढ़ें तो हर चीज
सही तरह उसको पढ़ें, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें, उसको समझ के पढ़ें, मेरे ख्याल में people will be amazed कि कितनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने की जो मैसेज है. आप क्या समझते हैं कुरान के बारे में? कैसी किताब समझते हैं कुरान को आप? मेरा पैशन है कुरान. जी, मैं क्या कुछ हमारा भी अल्लाह का शुक्र यही हाल है. मेरा पैशन है कुरान. मैं ये अपने मुंह से नहीं कहूंगा कि मुझे इस किताब से बड़ी मोहब्बत है, बट मेरा पैशन है कुरान. मेरे पास जब फारिग वक्त होता है ना, जब फारिग, कुछ भी नहीं करना है मुझे बाजार नहीं जाना है, मुझे कुछ नहीं, मैं बैठ के कुरान पढ़ता हूँ. सबसे अच्छी और ऐसे औकात मेरे हफ्ते में, दिनों में आते हैं कि मैं पूरा दिन कभी कभी बैठता हूँ और पढ़ता रहता हूँ. कभी कभी पूरा हफ्ता मुझे टाइम नहीं मिलता, नहीं मिला. कुरान को मैं कैसे पाता हूं? मैं इस ज़िमन में 2 बातें आपके सामने रखूंगा. नंबर 1, कुरान एक मुफस्सिल किताब है. मुझे इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए किसी और लिटरेचर की, मैं टूल्स नहीं कह रहा हूं, लिटरेचर की जरूरत ही नहीं. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आई थिंक टूल्स की तो जरूरत है, मुझे लिटरेचर की जरूरत नहीं. अगर मैं ये कहूं कि जी मुझे टूल्स की भी जरूरत नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है. आप दोनों अल्फाजों को पहचाने. जी सही बात है. अगर मुझे वो बात उस जुमले में अल्लाह नहीं समझा सके तो फिर मैं उस अल्लाह पर यकीन नहीं रखता. सही बात. ये तो अल्लाह की शान थी. ये अलग बात है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं. बिल्कुल मैं नहीं समझ पा रहा हूं. अल्लाह ने तो समझाई हुई है. हम क्या करते हैं, हम घसीट के अल्लाह को नीचे लाते हैं अपनी सतह पर और उसके जुमले का तर्जुमा कर देते हैं. हम ये नहीं करते कि हम अपने आप को एलिवेट करके उसकी सतह पर चले जाएं. और फिर देखें क्या बात कहना चाह रहे हैं कायनात के रब हमारे. अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक बात मुझसे की थी जब हम डिस्कस कर रहे थे कि आप बात कर रहे थे ना कि आयत जो है मुझे समझ में नहीं आई तो मुझे कोई असर नहीं हुआ, लेकिन फिर जब आपको समझ में आ गई फिर आपका क्या रिएक्शन था? आप शेयर करेंगे व्यूअर्स से? अरे बहुत सारी ऐसी आयत थी सरफराज. जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो मैं अपनी बीवी से कहता था, बीबी मुझे ये जुमला समझ में ही नहीं आता है. मसलन एक आयत थी, ज़ुय्यना शैतान आमालहुम, शैतान तुम्हारे आमाल बड़े मुज़य्यन करके, बड़े ब्यूटीफाई करके दिखाता है. मेरी नहीं समझ में आती थी ये क्या बात है. और एक दिन, मैं वो वाकया नहीं सुनाऊंगा आपको, एक दिन एक ऐसा वाकया हुआ कि उस शख्स ने अपने बुरे अमल को एक अच्छा अमल कह के मेरे सामने पेश किया. मेडिसिन के अंदर, मैं अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस के अंदर उसने अपने बुरे अमल को कहा, देखो मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूं. अब मैं सोच रहा हूं ये तो इतना गंदा काम कर रहा है लेकिन ये इसको इतना उम्दा काम समझ रहा है. मुझे आयत समझ में आ गई कि इसके बुरे अमल को अल्लाह ने इसके लिए मुज़य्यन करके पेश किया हुआ है. तो वाकयात होते गए और कुरान मुझ पर खुलता गया. अब भी अगर आप बहुत सी बातें मुझसे पूछेंगे ना सरफराज कुरान के बारे में, तो मैं आपको एक बड़ा छोटा सा जवाब दूंगा, आई डोंट नो. मुझे अभी तक इसकी मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ ये कहूंगा आई डोंट नो. सही बात. आपको पता है? आप मुझे बताओ.
जिस दिन मुझ पे रिवेल हो गई ना, उस दिन मैं भागता हुआ आपके पास आऊंगा, सरफराज नाउ आई नो, नाउ आई नो। सही बात है, ऐसे ही करना चाहिए। नहीं, ऐसी कैफियत हमारे साथ भी होती है कभी कभी, होती है ना, जब हम जब थोड़ा रिसर्च करते हैं और जब फिर वाकई में जो खुलता है ना हमारे सामने, सही उसका जो हमें समझ में आता है, हम कहते हैं वाओ, हमें वाओ निकलता है। देखा, वैसे मेरी हाँ। वजह। और फिर जिसकी जुस्तजू होती है उसी को पता चलता है, ये भी एक बात है। अब जैसे आपको था कि वो आया तो आपको समझ में आए, तो देखें ऐसा वाकया हुआ कि आपके समझ में आ गई, तो इसके पीछे वो जुस्तजू होना भी बहुत जरूरी है समझने। अब देखिए, ये एक बात पहले समझ लें कि ये किताब एक मुफस्सिल किताब है, 12 की 111। मैं पूरी आयत नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इसका आखिरी देखिए, कभी कभी एक आयत के अंदर एक से ज्यादा सेंटेंसेस होते हैं। जी जी, एक से ज्यादा सेंटेंसेस भी होते हैं, कभी 2 सेंटेंस होते हैं, कभी 3 सेंटेंस, कभी आधा सेंटेंस होता है। एक आयत के अंदर आधा सेंटेंस होता है, अगला सेंटेंस दूसरी आयत में होता है। तो यहां जो एक सेंटेंस में हटा के आखिरी सेंटेंस पढ़ता हूं, व तफसीला कुल्ले शैइन व हुदन व रहमतन लिकौमी युमिनून। जी। इसमें मैं ताहिर अल कादरी साहब का तर्जुमा करता हूं। ताहिर अल कादरी साहब ने इसका क्या तर्जुमा किया, एक रिवायती आलिम, रिवायती तर्जुमा करने वाले ना, उनका सुनिए क्या कहते हैं। इसमें हर तरह की वजाहत है, हिदायत है, रहमत है जो ईमान लाते हैं इस पर। ये मेरा तर्जुमा नहीं है, ये एक आम जो तर्जुमा ताहिर साहब ने सारी दुनिया के लिए किया हुआ है। खुद वो कह रहे हैं इसमें हर तरह की वजाहत है। एक और आयत देख लें, 16 की 89, मिलती जुलती आयत है। तिब्यानन लिकुल्ले शैइन, और फिर आखिर में वही लफ्ज है, वहुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। देखिए वही अल्फाज वहां भी थे, वही अल्फाज और से देखिए। फिर ताहिर साहब का तर्जुमा देखिए, हर चीज का बड़ा वाज़े बयान है, मुसलमानों के लिए हिदायत और रहमत और बशारत है। अब मैं अपने मुंह से 2 दफा कहूं वाज़े हिदायत है, वाज़े बयान है, और फिर दूसरे कमरे में जाके बोलूं नहीं जी इसकी वजाहत यहां नहीं हुई है, ये कैसे होता? आप मुझे कैसी शख्सियत कहेंगे? वेरी गुड पॉइंट। दूसरे कमरे में जाके कहूं नहीं नहीं जी यहां वजाहत नहीं है, देखिए मैं आपको वजाहत बताता हूं, ये फला किताब में लिखी हुई है इसकी वजाहत। व्हाट एम आई डूइंग? ये तो हाँ, ये बहुत उस पे हैरत होती है, हमें यही देखते रहते हैं हम अक्सर, हमें यही नजर आता है हर जगह। अगर वजाहत समझ में नहीं आ रही है तो कसूर किसका है? हमारा है, हमारा मेरा है। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रही है वजाहत, बिल्कुल। मैंने अल्लाह के ऊपर रख दिया ये बात कि नहीं नहीं आपकी बात की यहाँ वजाहत नहीं है, ये दूसरी किताब में वजाहत मौजूद है। अल्लाह ने कहा मेरी किताब वजाहत के साथ है। मैं इधर देख ही नहीं रहा हूं कि भाई तुझे समझ में नहीं आ रही है ये वजाहत। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये ऐसे ही है, हमेशा हम लोग यही देखते हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो वेस्ट में भी हैं और साउथ एशिया में, वो इसी को वो करते हैं, कहते हैं कि भाई ये क्लियर नहीं है, हमसे समझो, और इसके लिए फिर वो दूसरा जो आप कह रहे हैं ना, लिटरेचर को नहीं कर जरूरत, वो दूसरे लिटरेचर को ले आते हैं। हालांकि सब टूल्स हैं अवेलेबल, जो टूल्स आपके पास हैं, मेरे पास हैं, हर एक के पास टूल्स अवेलेबल हैं, वो उससे हम कुरान को कुरान से समझ सकते हैं, लेकिन उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो कहते हैं भाई ये दूसरा लिटरेचर भी आएगा, उसके साथ फिर समझेंगे, वरना नहीं समझ में। सही। अब इसी बात को थोड़ा सा आगे चल के लेके चलते हैं। मैंने आपसे पहले कहा था कि कुरान का टेक्स्ट महफूज है, शैतान जबान से काम करता है, ट्विस्ट
लैंग्वेज को ट्विस्ट करेगा। अच्छा, 17 की 81 में अल्लाह फरमाते हैं वजाल हक्का वज़हक़ल बातिल, हक आ गया, बातिल भाग गया। अब हक, थोड़ी देर के लिए हम हक का तर्जुमा नहीं करते हैं, बातिल से मुझे मिल जाएगा। अगर यह हक का तर्जुमा कर देते हैं तो बातिल का तर्जुमा मिल जाएगा, ऑपोजिट, वाइस वर्सा। अगर मैं हक को कहूं ठोस हकीकत, तो बातिल क्या हुआ? झूठ। झूठ, ठीक है। अच्छा, एक और देखिए, इन्ना ज़न्ना ला युगनी मिनल हक़ शयअन, 10 की 36। हक के आगे जिन कोई हैसियत नहीं रखता। ठीक है, अल्लाह ने फरमाया हक के आगे जिन, उनको भी मैंने ट्रांसलेट नहीं किया। हक मैं कहता हूं ठोस हकीकत, तो जिन का तर्जुमा क्या होगा? खाम ख्याली, अटकल पिच्चू। जी, हक का ऑपोजिट बातिल, हक का ऑपोजिट जिन। ठीक है, अब इस आयत में देखिए, तीसरी आयत में मामला साफ हो जाएगा। 41 की 42 में ला यातिहिल बातिलु मिन बैन यदिही वला मिन खल्फिही। अब फिर ये वो लफ्ज आ गया जो शैतान ने कहा था कि मैं आगे से आऊंगा और पीछे से आऊंगा। मैं इसका तर्जुमा कहता हूं हर पहलू से, हर तरफ से, हर पहलू से। अब अल्लाह फरमा रहे हैं कि इसमें फरेब, झूठ, खाम ख्याली, अटकल पिच्चू किसी पहलू से दाखिल हो ही नहीं सकता। इतनी ठोस हकीकत है ये। अब अगर मुझे ठोस हकीकत नजर नहीं आ रही है, मैं किसी अटकल पिच्चू के पीछे जा रहा हूं, मैं किसी खाम ख्याली कोई एक थ्योरी बना रहा हूं और मुझे ठोस हकीकत नजर नहीं आ रही है, तो ये कसूर किसका है? हमारा अपना कसूर। हमारे। अच्छा, एक अल्लाह ने तो कहा आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। अल्लाह ने तो साफ बोल दिया 41, 42 में नहीं आ सकता। बिल्कुल नहीं, वो जब ही आएगा जब आपका कसूर है ना, आपने सही तरह उसको कॉन्सेप्ट को सही नहीं किया आपने। मैं नहीं समझ पा रहा हूं, थोड़ी देर के लिए मैं रुक जाऊं, मैं अल्लाह से इल्तिजा करूं, मैं अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाऊं, मैं अल्लाह से दुआ करूं कि मुझे रुश्द अता कर और मैं रुश्द के हासिल होने के तरीके ढूंढूं। सही, मुझे बात समझ में आ जाएगी। बिल्कुल। और फिर भी ना समझ में आए तो क्या हर्ज है ये कह देने में, सरफराज और हिना, कि अगर मैं आपसे कहूं, आप मुझसे पूछें डॉक्टर साहब इसके क्या मतलब है, मैं आपसे कहूं आई डोंट नो, क्या हर्ज है? यही तो सारा मसला है डॉक्टर साहब, कि यहाँ पर लोग मेजॉरिटी में जो है वो एडमिट नहीं करते। अगर कुछ उनसे पूछें, अगर उनको फॉर एग्जांपल अगर पता नहीं है, फिर भी वो बताते चले जाते हैं उल्टा सीधा। ये नहीं कहते कि मुझे नहीं पता, मैं पहले रिसर्च कर लूं फिर आपसे बात बताऊंगा, लेकिन वो बताते अपने आप को जस्टिफाई करने की, हालांकि वो गलत चीज। क्यों? मैं आइंस्टाइन हूं, मैं थॉमस एल्वा एडिसन हूं? नहीं, मैं एक छोटा सा डॉक्टर हूं। अब तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई है, मुझे ये कहते हुए कोई शर्म नहीं आती है, नहीं आई है। जिस दिन आएगी ना, उस दिन फोन करके सबसे पहले आपको फोन करके बताऊंगा, सरफराज समझ में आ गई। सही बात है। अच्छा, एक चीज ये जो शैतान की बात चल रही है, तो ये रजीम जो है, क्या ये भी गलत समझा गया है? रजीम क्या इसका, ये आप देख लीजिएगा, अगर इसका क्या तर्जुमे से कुछ है लिंक? मैंने अक्सर से सुना है कि ये रजीम जी, इसको फिर किसी और दिन जब शैतान का किसी और कर लेंगे। ये रजम क्या है और रजीम क्या है, ये
فعیل کے وزن پر رجیم جب بنتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یہ صفت ہے نا، یہ صفت مبالغہ ہے. رجم سے صفت مبالغہ فعیل کے وزن پر ہے. تو صفت بنانے کے لیے جب ان کے وزنوں کو اٹھاتے ہیں تو ایک خاص چیز بنتی ہے. اچھا انشاءاللہ وہ اس کو انشاءاللہ پھر کریں گے. اچھا اب آخری بات، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اس کتاب کو آپ کیسا پاتے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایک چیز تو یہ پاتا ہوں کہ یہ کتاب مفصل ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں اٹکل پچو کی باتیں نہیں ہیں. صحیح کہہ رہے. 2 باتیں ہو گئی. ٹھیک ہے. اب تیسری بات، نٹ شیل میں اس کتاب کا مقصد کیا تھا؟ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں یار آپ ایک جملہ بتائیے اس کتاب کا مقصد کیا ہے. کوئی کیا بولتا ہے، کوئی کیا بولتا ہے، کوئی کیا بولتا ہے، اور بعض دفعہ لوگ صحیح بولتے ہیں جی. لیکن میں اپنا آپ کو ویو دیتا ہوں، میں اس کتاب کا مقصد کیا سمجھتا ہوں نٹ شیل میں. جی بتائیں. وہ آیت ہے 57 کی 25. بڑی خوبصورت آیت. میں بار بار اس کی تلاوت کرتا ہوں. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسولہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز. تھوڑا سا اس آیت کو کھولتے ہیں. 2 چیزیں نازل ہوئی. پہلے شروع میں کہا وَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ اور میزان. 2 چیزیں نازل ہوئی. جی. شروع میں اللہ نے کہا کہ یہ بڑی بینات ہے، بڑی کلیئر ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا تبیانا لکل شیء، یہاں وہی لفظ ہے بینات. جی جی. اسی مادے سے ویری کلیئر، بہت واضح. 2 چیزیں اتاری، 2 چیزیں آپ کی طرف بھیجی، کتاب، میزان. اب کتاب کیا ہے؟ قانون. صحیح. کتاب تو میں قانون. اور میزان کیا ہے؟ وہ جو ترازو ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوئے ہیں، یعنی اس قانون کے تحت فیصلہ کرنا. صحیح. 2 باتیں اتار دی. پھر کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. میرے دوستوں نے حدید کا ترجمہ کر دیا لوہا. ہاں لوہا. ٹھیک ہے. لوہا آسمان سے اترا ہے. اور لوہا کیوں اترا؟ سونا کیوں نہیں اترا؟ کاپر کیوں نہیں اترا؟ ارے لوہے سے زیادہ طاقتور چیزیں آ گئی ہیں. اب ٹائٹینیم جو ہے نا وہ لوہے سے زیادہ طاقتور چیز ہے. ٹائٹینیم نہیں. حدید کے معنی لوہا ضرور ہے لیکن حددہ سے بنا ہوا ہے. حدید کے معنی ہوتے ہیں باؤنڈریز، لمیٹیشنز. وہ تو ہے حدود. حدود تلک حدود اللہ. اور یہ فعیل کے وزن پر حددہ سے حدید. اچھا. ہاں لیکن ڈکشنری میں دیکھیں تو انہوں نے کیا ہوا ہے کہ وہ، لیکن جب ترجمے کیے وہاں پر انہیں آئرن ڈال دی ہے، لیکن براڈر ایسپیکٹ میں دیکھیں تو وہاں لمٹس ہے ایکچولی. جی جی. اچھا اب پھر اس کے بعد دوسری چیز کیا اتری ہے؟ منافع للناس. 4 چیزیں اتر گئیں، کتاب، میزان، حدید اور منافع للناس، یعنی لوگوں کے فوائد کی کچھ چیزیں. رائٹ. اب انگلش میں کہوں گا لا ہے، جسٹس ہے، باؤنڈریز ہے اینڈ سم گڈ تھنگس فار دا پیپل ہے. مجھے فائدہ ہو رہا ہے، مجھے نفع ہو رہا ہے. ارے میری باؤنڈریز کا حد تعین ہے. میں اس باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے مجھے نفع ہوگا، مجھے فائدہ ہوگا. صحیح. مجھے انصاف مل رہا ہے. ارے قانون موجود ہے. بالکل. کیوں نہیں ملے گا مجھے انصاف؟ صحیح بات ہے. قانون موجود ہے، مجھے انصاف ملے گا. اگر لوہا ڈالیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں.
अब मतलब ये मैं आपसे शुरू में बात कर रहा था कि जब आप उसको कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो यहाँ पर लोया डाल दिया कि कैसे करते हैं ये लोग, तो ये समझ में नहीं आता मुझे। क्या कह सकता हूँ मैं? कुछ नहीं कह सकता, मैं उनके बारे में कोई जुमला नहीं कह सकता। मैं कह सकता हूँ, ये कह सकता हूँ, गलती हो गई, थोड़ी सी सहम हो गई है, सकम रह गया है कुछ, चलो कोई बात नहीं, हम इसको सही कर देंगे। लेकिन वो जो यंग जनरेशन है वो इसलिए तो परेशान है, वो जो हम बात कर रहे थे, जब वो ये देखते हैं कि हालांकि ड्राइवर सब जाते हैं, स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं बच्चे बच्चियां, वो कहते हैं कि यार यहाँ पर ये कैसे मेक सेंस कर सकता है, यू नो, और फिर वो गलत चीज को फिर वो जो है सो कॉल्ड स्कॉलर वो जस्टिफाई करते हैं, करने के चक्कर में लगे जाते हैं, वो बच्चे और कंफ्यूज हो जाते हैं। बस असल में देखा देखी चल रहा है। अब जो पहला आपने बताया ना फारसी से जो उर्दू में तर्जुमा हुआ, तो अब सब उसी को ले रहे हैं, फिर वो ये कहना चाहिए बस वो चला आ रहा है, इसलिए ये हाल है। वो जो लोहा है वो लोहा ही बना हुआ है। हाँ, वो लोहा बना हुआ है वो कहीं से, और फिर फारसी के बहुत असरात हैं इसमें। अब आप अगर डॉक्टर साहब आ गए लोहे को कहेंगे नहीं भाई, अरे ये क्या बात कर रहे हैं। हाँ देखें, डॉक्टर साहब तो बिल्कुल अजीब बात करते हैं। मैं फिर कहूंगा, मुझे नफा हुआ, मुझे फायदे हो रहे हैं, इसलिए कि माशरे में कुछ हुदूद मुतय्यन थी, मुझे इंसाफ मिल रहा है, हाँ, क्योंकि माशरे में कानून नाफिज था। सही बात। ये 4 बातें हो जाएं जिस माशरे में, मुझे बताएं वो सरफराज, वो माशरा कैसा होगा? जन्नत, जन्नती माशरा। मुझे नफा हो रहा है, मेरी हुदूद है, मुझे इंसाफ मिल रहा है, कानून मौजूद है। अब आप इन 4 चीजों को जाके नाफिजुल अमल कर दें माशरे में, अब देखें माशरा कैसा है। बिल्कुल सही बात। मुझे नुकसान हो ही नहीं रहा है, मुझे तो नफा हो रहा है। सही बात। चले डॉक्टर साहब, हमने दुनिया, ये था कुरान का मकसद। बहुत इस जबरदस्त। माशरे को अल्लाह की चाहत थी कि ऐसा माशरा हो, बल्कि अल्लाह की चाहत क्या थी, उसने हमें कहा कि तुम्हारी तो चाहत भी वो हो जो मेरी चाहत है। इन तशाउना इल्ला मा यशाउल्लाह, तुम तो चाहो भी वो जो मैं चाहता हूं, तुम्हारा तो क्राइटेरिया भी वही होना चाहिए जो मेरा क्राइटेरिया है। सही बात। तुम्हारा तो मयार भी वही होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा आपने अच्छा बताया कुरान के जो आप समझते हैं इम्पोर्टेंस, और अपना जो व्यू दिया है बहुत ही अच्छा मेरे ख्याल में वैसे आपने दिया अपने व्यूअर्स को हमारे। आखिर में फिर हमारा ये है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आप समझते हैं इस वक्त रियली इम्पोर्टेंट, खास तौर पे जो यंग जनरेशन है उनके लिए क्या कहेंगे आप, जो हमारी यंग जनरेशन। आपने मुझे बड़ा मुअज़्ज़िज़ बना दिया। नहीं आपका शुक्रिया कि आप मुझसे मेरा व्यू मांग रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मैसेज, छोटा सा मैसेज दूंगा, आंखें खोलो, अकल के सारे दरवाजे खोलो, चीजों को रिविजिट करो, चीजों को छोड़ो नहीं, प्लीज छोड़ो नहीं, उन्हें जाके रिविजिट करो। देखो, अगर नहीं समझ में आता पूछो, एक से जवाब नहीं मिलता दूसरे के पास जाओ, एक ने नामाकुल जवाब दिया है, रुको नहीं, आगे बढ़ो, कोई माकुल जवाब तुम्हें दे देगा, मिल जाएगा, जुस्तजू होगी, जवाब मिलेगा। और जाती तौर पर हर एक से मैं ये दरखास्त करूंगा कि थोड़ी शुद्ध बुद्ध खुद भी इस जबान की रखो, थोड़ी। हर एक को मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पूरी ग्रामर रट ले और हर चीज उसको याद हो जाए, उसको सारे ना, तो अल्फाजों का जखीरा ही जमा कर लो, वोकैबुलरी बढ़ा लो अपनी कि ये अल्फाज के मानी क्या हैं, अब उसके बाद मुतय्यन मानी कहाँ क्या है, इस पर गौर व फिक्र शुरू कर दो। एक तो ये,
اور دوسرا یہ کہ ہم بات کو ختم کریں گے، اینڈ کریں گے میں ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ. جی جی ضرور. اور یہ بڑی کامن دعا ہے، ہر کوئی اس دعا کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، پڑھتا ہے. پتہ نہیں دن میں کتنی دفعہ ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں. لیکن میں اس دعا کو پڑھتے وقت تھوڑا سا اینگل چینج کر کے پڑھ رہا ہوں. وہی اینگل میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اس دعا کو اختتام پہ لے کر آیا اس لیے کہ میں اپنا اینگل بتاؤں. اس دعا کے اندر تو لکھا ہوا دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. عموماً ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میری دنیا حسین بنا دے اور میری آخرت حسین بنا دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ٹھیک، بات صحیح ہے، آپ کا یہ ترجمہ صحیح. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اس آیت کی ترجمانی کیا ہے؟ کیا چیز مجھے اس میں نے بولی اللہ سے؟ میری دنیا، اچھا تو میری دنیا کیسے اچھی ہو جائے؟ میرا گھر ہو جائے، میری گاڑی ہو جائے، میرا فلانا ہو جائے، میرا بینک بیلنس ہو جائے. یہ دنیا نہ یہ تو نہیں ہو بہت سے لوگوں کی نہیں ہے، بہت سے لوگوں کی نہیں ہے. وہ بھی یہ دعا پڑھ رہے ہیں، ان کی نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ نے ان چیزوں کو دنیا سمجھ لیا، نہیں. پھر آخرت کیا ہے جی؟ وہ جو 1 کروڑ سال کے بعد آئے گی نا، جب ہم مر کے دوبارہ اٹھیں گے، پھر اس کے بعد وہاں گاؤں تکیے ہوں گے، وہاں وہ ہوگا، وہاں آگ ہوگی. یہ تو پتہ نہیں کب ہوگا. وہ چنگیز خان جو اتنے لوگوں کو مار کے چلا گیا، اب اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ آخرت میں اس کو کتنا مارتا ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں. I just want to see. نہیں، وہ ہوگا، مجھے اس سے انکار نہیں ہے. وہ ایک آپ نے کہا ایک آخرت ہے، ایک ہیئر آفٹر ہے، ایک ڈے آف ججمنٹ ہوگا. اس سے میں کیا اخذ کر رہا ہوں؟ اور حسنہ کا مطلب ہے ایکسیلنس. اب میں کہتا ہوں فیئر، گڈ، ایکسیلنٹ. یہ سپرلیٹو ڈگری ہے کسی چیز کی. سپرلیٹو یا گڈ، بیٹر، بیسٹ، سپرلیٹو ڈگری ہے جی. ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز سپرلیٹو ڈگری میں عطا کر. دنیا کیا ہے؟ آج، ٹوڈے. تو میرے نزدیک ہے دنو جو اس کا ورڈ ہے تو بہت میرے نزدیک ہے. آج کا میرا دن ایکسیلنٹ ہو، بیسٹ ہو، جس میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہو، میری گاڑی کا پنچر بھی نہیں ہو، میرے گھر میں بجلی بھی آتی ہو، پانی کی بھی کوئی، ایکسیلنٹ ہو جائے میرا آج کا دن. اور میرا آخرہ، میرا نیکسٹ فیز، میرا آنے والا کل کا دن، اس انڈرسٹینڈنگ کے بعد جو میں نے آج لی ہے وہ بھی ایکسیلنٹ. اور آپ کو پتا ہے مومن جو ہے نا، اس کا کل جو ہے نا، آنے والا کل، اس کے آج سے بہتر ہونا چاہیے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اگر یہ نہیں ہو رہا ہے نا آپ کے ساتھ، آپ سوچیں. امپروومنٹ ضرور ہونی چاہیے. امپروومنٹ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف مانیٹری فارم میں ہوگی، نہیں. آپ اس کو کسی ایک چیز پر قید نہیں کر دیں. صحیح. یہ ایکسیلنس، کل کی جو ایکسیلنس ہے وہ آج کی ایکسیلنس سے بہتر ہونی چاہیے. آج بھی میری ایکسیلنٹ ہو، کل بھی میری ایکسیلنٹ ہو، صحیح بات. اور پھر بہتر بھی ہو. یہ ہے وہ انڈرسٹینڈنگ. ہمیں اس دعا کو اس طریقے سے سمجھنا ہے. اور پھر اس کا آخری لفظ ہے وقنا عذاب النار. بچا لے ہمیں آگ سے. Is it fire? Really? آ گئی جو ہم لکڑی سے جلا رہے ہیں، جو سوئی گیس سے جلا رہے ہیں، یا جو ہم دوسری چیزوں سے. Is it آگ؟ ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا تھا آگے پیچھے چل کے کہ صلاۃ کا اپوزٹ کیا تھا؟ خواہشات. جی.
ख्वाहिशात को दबा दो, सलात कायम होगी। आपकी ख्वाहिशात डोमिनेट कर गई हैं, सलात नहीं कायम हुई। और वो मैंने फिर कहा था, कुरान का नस्बुल ऐन फाउंडेशन है कुरान की, सलात जी, अपने ऊपर सबसे पहले सलात कायम करनी है, अपने ऊपर। ये है, ये नार जो है ना, ये लो बेस्ड पैशंस हैं हमारे, जो हमारे डिजायर्स हैं। फिर मैं कहूंगा ख्वाहिशात और खुशफहमियां, अच्छा, उनसे बचा, उससे बचा के मैं किसी चीज के बारे में खुशफहमी में रहूं। आंखें खुल गई। अगर आपने कहा ना कि मैं खुशफहमी में ना रहूं ना, फिर आप जी, और ख्वाहिशात आपके जहन से या आपके दिल से हट गई। अब ख्वाहिशात की कौन सी ख्वाहिशात? अब जाहिर ख्वाहिश मुझे हो रही है ये बिरयानी खाऊं, ये ख्वाहिश तो मैं नहीं हटा सकता। आप चाहें तो हटा सकते हैं, ऐसा मसला नहीं। ये लस्ट है, लस्ट। तो ये नार का मीनिंग आपने ये यस, ये नार के मीनिंग है हमें इससे बचा। ये ऐसी जलाती है, ये ख्वाहिशात की जो तमन्ना है, जो आरजू है, जो उसकी तकमील करने के तरीके हैं, ये आपको जला देंगी। बात तो बिल्कुल सही है। आपने जो बात की है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इट्स मतलब बहुत पावरफुल आपकी बात है। और अगर हम इस पे डीप जाएं, डीप सोचें, तो ये बात बिल्कुल फिट होती है इस आयत, इस वर्ड। बिल्कुल भी, हाँ, ये तो हो रही है बिल्कुल फिर। और यही बिल्कुल ही यही वजह है कि लोग जो हैं वो इस पे आखिर की जो बात की है ना, आप इस पे जाते हैं, इसलिए अपनी जिंदगी जो है ना उनका मसला हो जाता है फिर बहुत। उनकी जिंदगी में आग होती है, बिल्कुल बहुत जबरदस्त बात है। तपिश। तो ये तपिश जो है वो जलना, अपना जैसे कोड़ना, ये कह सकते हैं। कुछ भी फॉर्म में ले लो इसको। इतना बड़ा पैराबल है इस नार को, उसमें एक छोटी सी ये जो सुई गैस की आग है ना, इसमें नहीं ले जाना। ये नहीं है, हाँ। तो उसके अंदर की आग होती है, किस चीज की आग होती है, ये तो वाकई बहुत। ये इससे मुझे बचा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं किसी बात की नाजायज ख्वाहिश मेरे जहन में ना आए, किसी किस्म की खुशफहमी मेरे जहन में नहीं। अब आप देखिए, जब आप ये दो चीजें, नाजायज ख्वाहिशात और खुशफहमी से बचेंगे, आपके कदम कैसे चल रहे हैं। बिल्कुल, ये बात तो है, बिल्कुल ये बात तो है। बहुत अच्छा आपने। होगी, गलती होगी, हम सब गलती करेंगे। जी जी, गलती होगी, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। एग्जैक्टली। अवेयरनेस, अवेयरनेस आ गई है, आप गलती को भी करेक्ट कर लोगे। हाँ, और फिर दुआ भी इसी चीज की करनी चाहिए कि हम उससे बचें। बिल्कुल सही बात किया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपका मैसेज था। बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आपने ज्वाइन किया आज, और बहुत अच्छा आपने समझाया कुरान की जो तर्जुमे हैं उनके बारे में, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और आप किस तरह देखते हैं कुरान को, और आप किस तरह कुरान को तर्जुमा करने तर्जुमानी आपने वर्ड किया है, मेरे ख्याल में ये सही वो लफ्ज यूज किया है, कुरान की आप किस तरह तर्जुमानी करेंगे और कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू। और दूसरा ये कि थोड़ा सा मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, इंग्लिश में थोड़ा सा प्लीज stay tuned with Dr. Saab. Will be invited also different topics we will be discussing in English, inshallah. This is the first topic we have discussed in Urdu, but inshallah in the future Dr. Saab will be discussing different concepts in Quran in English for the viewers who understand English only. So again, thank you Dr. Saab हमें ज्वाइन करने के। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में फिर हम अपने व्यूअर्स को कहते हैं कि प्लीज अपने सबका ख्याल रखें, अपनी फैमिली का, अपने नेबर्स का, और कुरान को पढ़ा करें और समझा करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम पैगाम हक।